Assalamu alaikum everyone. We are live on Facebook right now. तो हम अपना वेबिनार का आगाज़ करने लगे हैं. So we've had RMU in collaboration with Ravelian Community Awareness Program and Shifa for You is organizing a 3-day webinar series to commemorate World Hepatitis Day. And World Hepatitis Day is one of the 12 official public health campaigns marked by the World Health Organization, and it is observed on July 28th each year to raise awareness of the global burden of viral hepatitis and to influence real change. World Hepatitis Day presents the opportunity to step up national and international efforts on hepatitis and encourage action and engagement by individual partners and the public and highlight the need for greater global response. The theme for World Hepatitis Day 2021 is Hepatitis Can't Wait. And we would like to welcome our esteemed guest, Professor Shahzad Ali Khan, who is Vice Chancellor of Health Services Academy Islamabad. I am जी Khubeb Samdani and I'm president of VFAT RMU and I'm final year medical student from Rawalpindi Medical University. And we have created these a series of webinar. Uh, it was a 3 days webinar series. Jisme on the day one we discussed about the health promotion and education regarding hepatitis, and on the day two we had the talk about infection prevention control management, and today is the last and third webinar, which is about healthcare policy towards hepatitis free Pakistan. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि what are the policies that our government need to adopt and what are the political leaderships interventions that we need to control hepatitis and to make hepatitis free Pakistan. So थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन जो है वो हमने बनाई है जिसमें हम we will quickly go through the slides. आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. हाँ जी विजिबल है. अच्छा, तो बेसिकली ये जो WHO ने गाइडलाइंस रिलीज की थी 2019 में, उसमें पॉलिसी मेकर्स के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिसके मुताबिक WHO कहती है कि देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग फर्टिलिटी एंड प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस. वायरल हेपेटाइटिस जो है इट इज़ अ लीडिंग इन्फेक्शियस किलर, लेकिन बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स और पब्लिक इससे अनअवेयर है. इस वक्त मोर्टेलिटी का 8वां बड़ा कॉज है हेपेटाइटिस और 1.34 मिलियन डेथ्स जो हैं वो 2015 में हुई और 2015 से 30 के दरमियान it is projected that 20 million deaths can occur due to hepatitis. और पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस सी के 7.1 मिलियन मरीज मौजूद हैं और हेपेटाइटिस बी के 5 मिलियन मरीज मौजूद हैं और हर साल 1,50,000 केसेस का इस पूल में इजाफा हो रहा है. और WHO के मुताबिक 2016 में 23,720 लोग जो हैं हेपेटाइटिस की रिलेटेड कॉजेस की वजह से उनकी मोर्टेलिटी हुई और पाकिस्तान का वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट प्रेवलेंस है हेपेटाइटिस सी की, विच इज सेकंड ओनली टू इजिप्ट. तो is it possible that if can we eliminate hepatitis from Pakistan by 2030? But there are several challenges that hinder the elimination of hepatitis C virus from Pakistan, which include patient awareness, which include affordability for investigation and drug treatment, which includes the lack of experienced healthcare professionals, lack of effective drugs, and delayed regulatory approvals. There is compromised monitoring by health authorities. There is lack of robust epidemiological data, and we have inadequately screened blood transfusion, improperly sterilized uh, uh, invasive medical devices, unsafe injections. So 5 strategic directions हैं which are released by WHO in their regional action plan for the implementation of global health sector, जिसके मुताबिक हमें 5 डायरेक्शंस पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले
सबसे foremost है leadership, good governance and advocacy. उसके बाद we need to have information for focused action. Then we need to take interventions for impact, and then we need a strong system for the strengthening for equitable access, and finally we need to have financing for sustainability. So what needs to be done to eliminate hepatitis from Pakistan by 2030? uh, as I said earlier, political leadership चाहिए, national strategies हमें develop करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा हमारा पाकिस्तान को अपने हेल्थ बजट का 9.0 जो बजट है वो लगाने की ज़रूरत है, अगर हम हेपेटाइटिस सी की इंसिडेंस को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस सर्वेलेंस सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पीडिंग अप ऑफ स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, देयर इज़ अ नीड ऑफ स्केलिंग अप ऑफ ट्रीटमेंट एंड इंक्रीज कंप्लायंस, and we also need to learn from other countries. And lastly, awareness is the greatest agent for change. और as we FAT, हम यही काम कर रहे हैं. We are making sure that we try to make the public as aware as possible. और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने का मकसद भी यही है कि हम सब मिल के उस कड़ी का हिस्सा बन सकें. So we need to spread awareness by events, seminar, workshops. We need to employ creativity and innovation. We need to employ social media, involve media and celebrities, and educational campaigns. So on World Hepatitis Day 2021, VFAT and RCAP and Shifa for You invites you all to join us and to help us reach out those 325 million people so we can stop ignorance and neglect of viral hepatitis. And we also have to educate ourselves and others, learn risks for viral hepatitis and access testing services. I would like Dr. Umaima, who is the president of RCAP, to introduce our esteemed guests. Assalamu alaikum. I am Dr. Umaima Asif and I am working as president of Rawaleen Community Awareness Program. We are very much honored to have two esteemed guests with us. One is, I must say, जिनको public health का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, Dr. Shehzad Ali Khan, who is currently Vice Chancellor and Dean of Public Health in the Health Services Academy. And to give a brief introduction of Dr. Shehzad Ali Khan is a medical graduate of KEMC. He did MBA with majors in finance and MS in public health from Quaid-e-Azam University. He also holds a fellowship of Faculty of Public Health from Royal College of Physicians, London. I also add to it that he is one of the few medical doctors with a PhD in management sciences in Pakistan. Please welcome Dr. Shehzad Ali Khan. Sir, you are very much welcome. Next, our very esteemed guest is our very own Vice Chancellor, Professor Dr. Muhammad Umar Sitara Imtiaz, a proud Ravelian and first Ravelian principal as well, and he was the founder of Rawalpindi Medical University, founder Vice Chancellor in fact. And if we say कि Quaid-e-Azam का call है काम काम और काम, तो अगर काम काम और काम की जिंदा मिसाल आपने देखनी है तो आप प्रोफेसर मोहम्मद उमर को देखिए. आई थिंक आपको समझ आ जाएगी कि कायद-ए-आज़म क्या कहना चाह रहे थे. सो आई वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर एज वेल. सर, हम डॉक्टर शहजाद अली खान से स्टार्ट करेंगे. सर, what are your views regarding actions and prevention of hepatitis in Pakistan and worldwide as well? Sir, please. थैंक यू उमैमा. आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी 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 सर. यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है. ये थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन. पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ होगी तो कोई उसका बादशाह बन जाएगा. फिलहाल तो हम एक वर्कर हैं पब्लिक हेल्थ के. अल्लाह करे कि पब्लिक हेल्थ डेवलप हो और हम ये जो इतनी लंबे लंबे सेशंस करते हैं और इतनी ज़्यादा अभी जो इसने खुबैब ने आपको नंबर्स दिखाए हैं खौफनाक किस्म के हेपेटाइटिस के, तो वो शायद हम उसको मैनेज कर सकें. मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन 10 मिनट की रखी है, उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे. आल्दो हेपेटाइटिस पे बात करने के लिए प्रोफेसर उमर और आप लोग जो बहुत ज़्यादा आपने काम किया हुआ है, वीफैट ने भी और आपने भी, वो आपने बहुत अच्छा खुबैब ने प्रेजेंट भी कर दिया. मैं थोड़ा सा हट के जो कि मैं एक और चीज़ की तरफ आपको लेके जाऊंगा
ये मैं जस्ट रिपीटिशन है जो बताया खुबैब ने कि किस तरीके से दुनिया में हेपेटाइटिस की बीमारी बढ़ती जा रही है। इज इट ओके अगर मैं उर्दू में बोलूं या कोई इंटरनेशनल Yes, गेस्ट भी हैं definitely. ऐसे? तो मैंने लिखा तो इंग्लिश में हुआ है, बट सर आई बी हमारी एबल उर्दू ऑडियंस है, टू हमारी सारी बाइलिंगुअल। उर्दू ऑडियंस है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच अ स्केरी पिक्चर। हमें बहुत ज़्यादा खौफ है कि दिन ब दिन इसके हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। अभी आपने जिस तरह बताया कि बहुत ही स्पीड से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जिसकी आप आज बात कर रहे हैं ना, और शायद पहले भी आपकी इस पे बात हुई हो, हेपेटाइटिस इसलिए भी ख़तरनाक है कि 80% लोगों में इसके सिम्टम ही कोई नहीं होते। सो हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, इस केस में ए और डी जो है, इसमें चूंकि डायरिया होता है, मोस्ट कॉमन जो हमारी टाइप है वो ए और ई टाइप वायरस है, जो कि डायरिया की सूरत में होता है। लेकिन अगर आप बी और सी देखें जो कि ज़्यादा खतरनाक हैं और क्रॉनिक लिवर और बाकी जो मसले हैं वो पैदा करते हैं, so most of the time the persons they don't know that they have hepatitis, वो बाय चांस फाइंडिंग होती है, और बाय चांस फाइंडिंग में उनका लिवर और उनके काफ़ी सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होते हैं पहले से। तो इसलिए ये एक जहन में रखें कि पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव में मुझे ये ज़्यादा टेंशन है कि इफ समवन इज कैरिंग हेपेटाइटिस एंड ही इज गोइंग अगेन एंड अगेन टू अ जीपी और इन अ हॉस्पिटल एंड द पीपल आर गेटिंग इन टच एंड वो ब्लड भी दे रहा है, इंजेक्शन भी लग रहे हैं उसको, तो बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है। 3 से ज़्यादा केसेस हों जी किसी जगह पे तो हम अलर्ट हो जाते हैं, एक वक्त में 3 केसेस आ गए, और अगर 6 केसेस हों तो हम आउटब्रेक नोटिफिकेशन को नोटिफाई कर देते हैं। ये भी आम आदमी को पता होना चाहिए कि एक ही इलाके में एकदम से 3 केस आने का मतलब है कि एपिडेमिक आ रही है, और 6 आ गए और हेपेटाइटिस का टेस्ट भी करवा लिया हमने तो कंफर्मेशन हो जाती है कि ये आउटब्रेक होने वाली है। तो ये एक हमारा थोड़ा सा आम आदमी को पता होना चाहिए कि 6 केसेस हो गए तो आपने इस पर फौरन एक्शन लेना है डॉक्टर्स ने। आगे चलें, ये जरा देखें कितनी खतरनाक स्लाइड है। 1999 यानी कि 2000, आप देखें 2000 एंड देन सी 2015, व्हाट इज हैपनिंग। आई डोंट वांट कि आप सारे पढ़ें, मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि नीचे जो ये ब्लू लाइन है या आपको ग्रीन नजर आ रही होगी, डिपेंड करता है कि आप मोबाइल फोन पे हैं या लैपटॉप पे हैं। एक है सिरोसिस इन पाकिस्तान और एक है जो और ऑरेंज कलर कह लें या जर्द रंग कह लें, इंडिया का जो रंग है वो सिरोसिस इन इंडिया है। दोनों मुल्कों में ठीक ठाक किस्म का जो सिरोसिस है उसमें इजाफा हुआ है, और जो वायरीमिया यानी कि हेपेटाइटिस सी का वायरस है, ये टाइम के साथ साथ कितनी ज्यादा इन्फेक्शन हुई हैं सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ वायरेमिक केसेस देखें मिलियंस में, जो कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ग्रीन पाकिस्तान की है और ऑरेंज इंडिया की है। पाकिस्तान की लाइन ऊपर है, आप देखें ऊपर वाली लाइन जो स्ट्रेट जा रही है वो पाकिस्तान की लाइन है, और वो उसमें कोई खास कमी नहीं आ रही। इंडिया की इंक्रीज कर रही है जो कहते हैं ना वायरीमिया की। और फिर जो बार आपको नजर आ रहे हैं, ये बार जो हैं ये सिरोटिक केसेस हैं, नंबर ऑफ सिरोसिस केसेस। लुक एट what is happening in Pakistan, that within last 15 years we have almost doubled the number of cases of cirrhosis, और वो हजारों में बढ़े हैं, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25 करते करते तकरीबन कोई 4,50,000 के करीब केसेस इंडिया में हैं, और तकरीबन इस, और पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन पाकिस्तान की उनसे बहुत कम है। तो अगर हम इसको पर मिलियन करेंगे या पर 1000 करेंगे या परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस नजर आएंगे। टोटल भी ज़्यादा केसेस हैं वायरीमिया के, और सिरोसिस भी बहुत ज़्यादा है। सो ये एक बहुत ख़तरनाक फिगर है। अब आगे आए तो जो हुबैब ने स्टार्टिंग पॉइंट दिया और 5 पॉइंट्स बताए इसके WHO के, मैं उसमें से कहता हूं कि हमारे पास डाटा भी बहुत है। वी डोंट नीड मोर डाटा। वी नो how much people are there, we know it's a big problem, we don't want to have much more sort of research just for the sake of getting numbers। हमारे हालात जो हैं वो इस वक्त इस चीज़ की इसके ऊपर फोकस्ड है कि ये बहुत, और पाकिस्तान में पंजाब का तो अभी रिसेंटली 1 साल पहले हमने प्रेवलेंस सर्वे किया है पंजाब में हेपेटाइटिस का, ठीक है, और वो पंजाब के गवर्नमेंट ने किया था, और तकरीबन 9.5% प्रेवलेंस आई है पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस सी की, और तकरीबन 6% प्रेवलेंस आई है हेपेटाइटिस बी की। तो ये जो नंबर हमने आज बताए हैं इससे नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसको अगर आप देखें तो। एक चीज़ ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में नंबर 1 कॉज जो है ना हेपेटाइटिस का सी का और बी का, वो हमारे हेल्थ सेक्टर में मौजूद है। तो खुबैब साहब, आप और मैं और मैमा, हमें तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने हेल्थ सेक्टर को ठीक कर लो आप,
तो मेरा ख्याल है जी सर। हेपेटाइटिस का जो हमारे हेपेटाइटिस का मसला है वो ठीक हो जाएगा। सो बिल्कुल। आप जी छोड़ दें बाकी सारी बातें। हेल्थ सिस्टम के लोग, डॉक्टर्स, जीपीज, जितने भी हमारे डिस्पेंसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, फ्लेबोटॉमिस्ट हैं, या जो भी वैक्सीनेटर्स हैं, ये अगर ठीक हो जाएं और अपना काम ठीक करें, हम बाकियों को छोड़ दें। ये जो 4 चीजें और बताई हैं ना उन्होंने, फाइनेंसिंग इंक्रीज करो जी, 9% कभी नहीं होने वाली। 9%, हम 5% पे अड़े हुए हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी का 5% हो जाए, वो नहीं हो रहा। 1.1% है अभी तक। आपको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा डेफिसिट होता है, और कर्जे और इस तरह की चीज़ों के ऊपर पहले ही हमें पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत जो है उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मुझे कोई नज़दीक में नज़र नहीं आता कि आप 5% भी ले सकेंगे, तो 10% तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, आप कहते हैं जी कि ये इंफॉर्मेशन के लिए रिसर्च करें, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास DHIS और HMIS सिस्टम्स में और हेपेटाइटिस प्रोग्राम्स के पास डाटा आता है रेगुलरली। हमारे पास जो कहते हैं ना कि मेडिसन और उसका भी कोई इशू नहीं है, आपने कहीं जिक्र किया WHO कहता है शायद कि जी एक्सेस टू मेडिसिन के इश्यूज हैं, नहीं, वो भी इशू नहीं है। पाकिस्तान के जो प्रोग्राम्स हैं उनके PC1 मौजूद हैं। सिंध ने रेगुलर साइट पे कर दिया हुआ है, पंजाब का अपना प्रोग्राम है, KP का अपना प्रोग्राम है, बलूचिस्तान का अपना हेपेटाइटिस कंट्रोल का प्रोग्राम है, ठीक है ना। जी So we have a committed PC1s and committed programs in that sector as well. The only thing which we don't have is a a sort of a control or governance, और वो जो उसमें लिखा हुआ था हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, वो जो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है ना, वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मिसिंग है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जो जो इश्यूज है ना उनको हम किसी तरीके से हम इसको बेहतर कर सकें। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने जो ये करना है ना, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमने किसी ना किसी तरीके से ये जो हमारा सिंगल फैक्टर है जिसको आप कहते हो हेल्थ सेक्टर, इसको भी अगर मैं ठीक कर लूँ ना तो मेरा ख्याल है हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सो द नंबर 1 कॉज ऑफ हेपेटाइटिस B and C इज हेल्थ सेक्टर, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना है, हमें अपने अंदर अपने आप को ठीक करना है और उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद अच्छा, अब जो मैं बात की है, ये मैं क्यों इसके ऊपर इतना बार बार फोकस कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो मेरे करने का काम है, खुबैब के करने का काम है, यजान के करने का काम है और उमैमा के करने का काम है, अगर वो ठीक हो जाएगा तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि कितने कितने मसले हल हो जाएंगे। दुनिया में एक WHO का एस्टीमेट है कि 16 अरब टीके लगते हैं। 90 से 95% टीके जो हैं वो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए लगते हैं, 5 से 10% इम्यूनाइजेशन के लिए लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 10% टीके जरूरी हैं जो कि हमारे हिफाजती टीकों के लिए चाहिए होते हैं, बाकी सारे के सारे थेराप्यूटिक पर्पस के इंजेक्शन हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनमें बहुत बड़ा इशू जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हेपेटाइटिस को। लुक एट दिस, हेपेटाइटिस B unsafe injection account for 1/3 of new hepatitis B these infections, and 21 मिलियन ग्लोबल जो इन्फेक्शन हैं वो इंजेक्शन इसकी वजह से है, हेपेटाइटिस B की वजह से है। 21 मिलियन इन्फेक्शन हेपेटाइटिस B की इंजेक्शन की वजह से है। हेपेटाइटिस C is the unsafe injection or most common cause of hepatitis C as well in the developing world। ये 2 मिलियन न्यू इन्फेक्शन ईच ईयर करता है, और 40% ऑफ हेपेटाइटिस C जो है 1/3 हो गया हेपेटाइटिस B से 33%, और 40% हो गया हेपेटाइटिस C जी। और HIV एड्स की तकरीबन 2.5 लाख न्यू केसेस आते हैं अनसेफ इंजेक्शन की वजह से। अब मुझे आप बताएं हमें क्या जरूरत है इधर उधर झांकने की या कुछ करने की? अगर मैं ये ठीक कर लूं, ये निज़ाम ठीक कर लूं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हेपेटाइटिस B भी कम हो जाएगा 1/3, हेपेटाइटिस C भी कम हो जाएगा 40%, और HIV की तकरीबन 2.5 लाख नए केसेस नहीं आएंगे। और ये सबसे ज्यादा साउथ एशिया में है। आप समझते हो, हम भी ये समझते थे, मैंने अभी कुछ अर्सा पहले 4-5 साल HIV में काफी काम किया, तो मैं ये समझता था ये अफ्रीका की बीमारी है। अफ्रीका के नंबर कम है, साउथ एशिया के नंबर ज्यादा हैं HIV के। इतने ज्यादा केसेस अब आ रहे हैं HIV के, और उन सब का ताल्लुक अनसेफ इंजेक्शन से हैं। अभी ये रतो डेरो की आपको भूली नहीं होगी बात, कुछ अरसे के लिए खबरें आई थी अखबार में और एक मीडिया पे न्यूज चली और सारा कुछ हुआ लड़काना के बारे में। उसके बाद वो फिर थोड़ा सा डाई डाउन कर गया क्योंकि कोविड आ गया और हमारे मसाइल बड़े बढ़ गए इधर उधर के। सो दिस इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। सो हम हेपेटाइटिस को साथ ये भी ध्यान में रखें कि एक हेपेटाइटिस के ऊपर, जो कि आपका आज का सेशन है, हेपेटाइटिस पे काम करने से, हेपेटाइटिस B और C के ऊपर काम करने से आप जो एक्शन लोगे हेल्थ सेक्टर में, उससे HIV एड्स भी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2.5 लाख केसेस दुनिया के हैं, पाकिस्तान के भी हजारों में होंगे।
ये एक मॉडल है जिसमें कि हम जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, ये आपको मैं नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ इतना बता दूं, आज आप सब लोग रेनबो मॉडल लिखें गूगल में लिखें रेनबो मॉडल और इमेजेस को क्लिक कर दें एंड यू विल डाउनलोड दिस सॉर्ट ऑफ अ रेनबो मॉडल एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हमने किस तरीके से वो करना है। ठीक है, अभी मुझे एक रिक्वेस्ट आई है उमैमा जी और सर। हुबैब, हमें एक रिक्वेस्ट आई है प्रेजेंटेशन की। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मेरी जो प्रेजेंटेशन होती है वो कॉपीराइट नहीं होती, वो कॉपी लेफ्ट होती है। मैं ये प्रेजेंटेशन अभी आपको दे दूंगा एंड इफ एनीवन वांट्स दिस प्रेजेंटेशन जस्ट गिव इट टू देम एंड टेल देम दैट दे कैन यूज दिस। सो ये रेनबो मॉडल है, इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, एज है, जेंडर है, आपकी जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इसके बाद आपका इंडिविजुअल लाइफस्टाइल है और सोशल एंड कम्युनिटी नेटवर्क है। ठीक है ना। सो मैं अपने ऊपर मेरा एज, जेंडर और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, जेनेटिक्स इफेक्ट करेंगे मेरी डिजीज को, हेपेटाइटिस बी को भी, हेपेटाइटिस सी को भी। इंडिविजुअल लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर, क्या मतलब है इसका मतलब है कितने के करीब आप टीके लगवाते हैं रोजाना, मतलब हम कितने इंजेक्शन लगवाते हैं, हम कितने इंजेक्शन प्रोन है। पाकिस्तान का पता है आपको 8 इंजेक्शन पर पर्सन पर ईयर वैल्यू है पाकिस्तान की। लुक एट द लाइफस्टाइल एंड आई थिंक वी आर नंबर, अभी आपने खुद कहा इजिप्ट के बाद शायद नंबर 2 है दुनिया में सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगाने वाली कौम में। सच अ सीरियस इशू इस 2021 के अंदर। इतनी मेडिसिन की टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद हमारे पेरिफेरी में, हमारे 70% जहां आबादी रहती है रूरल एरिया में, वहां लोग समझते ही नहीं है कि जी अगर इंजेक्शन नहीं लगेगा तो फिर इलाज ही नहीं होना, इलाज तो है ही नहीं अगर टीका नहीं लगती। वो जी नाराज सर, होते हैं टीका टीके टीका अंदर और बीमारी हाँ, बाहर। टीके के लिए जबरदस्ती लड़ाइयां करते हैं, सिफारिशें लगवाते हैं। और जो जी जी जीपी जी। है हमारा, जो हमारा जीपी है विच इज टेकिंग केयर ऑफ अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन, 20% पाकिस्तानीज दे गो टू पब्लिक सेक्टर, 70% एंड 70% एंड सॉरी प्राइवेट सेक्टर एंड 20% गो टू पब्लिक सेक्टर। यानी कि पाकिस्तान में 20% लोग जाते हैं सरकारी शिफाखानों में और 70% लोग जाते हैं प्राइवेट में। ये जो 20% जा रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली फ्रॉड होता है, पिलफरेज होती है, रीयूज होता है सिरिंजों का। लेकिन प्राइवेट तो फॉर प्रॉफिट है, वो जीपी तो एक टीका खोलता है, शाम को एक सिरिंज खोलता है और वो 10 बंदों को उसे टीका लगाता है। और आप सोचें कि ये जो रतो डेरो का था, ये कितनी बड़ी एग्जांपल थी हमारे सामने कि वो एक इंजेक्शन से बच्चों तक को एचआईवी हमने कर दी, और हेपेटाइटिस सी तो एक आम सी बात बन गई है, काला यरकान। अब आ जाए आखिरी पॉइंट की तरफ। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो हेपेटाइटिस में हम कर सकते हैं और ये हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए तमाम एरियाज कहलाएंगे। एक है कम्युनिटी एक्शन। कम्युनिटी एक्शन का मतलब ये अपनी सराउंडिंग को बेहतर करें, पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। सो ये जो आपका कम्युनिटी फॉर रेवलियन कम्युनिटी एसोसिएशन जो है, ये जो आप एक काम कर रहे हैं, इनको थोड़ी सी हेल्थ की डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेना है। आपने अपने इलाके के, रावल के जितने भी एरिया में आपका सराउंडिंग है, या जो एनजीओ काम कर रही हैं, वी फैट भी काम कर रहा है, पूरे पूरे पाकिस्तान में इनके वॉलंटियर्स हैं, दे शुड गो टू द हेल्थ प्रोवाइडर्स and convince them, sir, please either don't reuse the syringe, either use a new syringe, take 10 rupees extra, or don't give an injection. Very simple. आप क्यों ये रीयूज करते हैं? अब ये इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल है कि इसकी कोई हद नहीं है। सो ये जो कम्युनिटी एक्शंस हैं हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, मैंने और आपने खामोश नहीं रहना, हमने जाके चेक करना है एक जीपी को कि वो करता क्या है और उस पर खामोश नहीं रहना। ये मेरा ख्याल है टारगेट होना चाहिए वी पार्ट का भी, और यही टारगेट होना चाहिए रावल की जो कम्युनिटी एसोसिएशन है उसका भी, कि जीपीस को, प्राइवेट सेक्टर को देखें और ये मिस्ट्री क्लाइंट्स भेजें, मुझसे मिलें, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप असेस कर सकते हैं कितने पेशेंट हैं और कितनी सिरिंजें मिली हैं बाहर से, कूड़े में कितनी सिरिंजें आई हैं उनकी ना, ये उन्हें डिस्पोज कितनी की हैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ये रीयूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा। बड़े मेथड्स हैं इसके। हेल्थ बिहेवियर, लोगों को समझाएं कि यार आप अपना जो बिहेवियर है उसको हेल्दी, और व्हाट इज एन हेल्दी बिहेवियर? हेल्दी बिहेवियर इज अवॉइड इंजेक्शंस बिकॉज इंजेक्शंस कॉज हेपेटाइटिस बी, सी एंड एचआईवी, all three comes through injection. Then utilization of health, ये हम बात कर रहे हैं utilization of health services. Try to seek the public sector health care. अभी इसी साल के एंड में हम पाकिस्तान के, ये पंजाब के तकरीबन हर शख्स को ये जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है इसका कार्ड मिल जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड ही सेहत सहूलत प्रोग्राम का बन जाएगा, क्या कहना चाहिए, एलिजिबल। 1 मिलियन की कैप होगी तकरीबन और एडमिशन की, और आप देखेंगे कि ये जो रीयूज है और इस तरह की चीजें हैं ये हमें खत्म करनी पड़ेंगी। उसकी वजह ये है कि वो एक स्टैंडर्ड के तहत आपको सर्विसेज मिलेंगी और उसमें आप नहीं पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही होगी। सो हेल्थ यूटिलाइजेशन का जो बिहेवियर है ना हेल्थ सर्विसेज का, वो हमने अपना ठीक करना है। एक बड़ा खतरनाक हमारा बिहेवियर है, हम छुपाते हैं। स्टिग्मा है, मुझे स्टिग्मा है जी, टीबी होगी तो नहीं बताऊंगा, हेपेटाइटिस होगी तो नहीं बताऊंगा,
आप जाएं जीपी के पास, उससे कहें यार मैं हेपेटाइटिस का पेशेंट हूँ, मेहरबानी करके मेरे ऊपर जो है ना वो जो सिरिंज इस्तेमाल करे ना वो किसी और पे ना इस्तेमाल करी, मेहरबानी कर, तू मेरे साथ तो मतलब जाहिर है जुल्म कर ही रहा होगा, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे बाद मेरी सिरिंज किसी को ना इस्तेमाल करी, मुझे हेपेटाइटिस सी है। what is a harm in telling your GP, telling your doctor alone, प्राइवेसी में आप ना खुले आम बताएं, बट आई थिंक दैट इज समथिंग। और अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, अभी हम सिरोसिस की बात कर रहे थे, इमीडिएट रेफरल कराओ भाई, आप क्यों CLD जब इरिवर्सिबल हो जाए उस वक्त आप जाओगे, बहुत कुछ हो सकता है। आजकल तो इतनी एडवांसमेंट है, अभी उमर साहब से आप पूछेंगे दुनिया जी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर जल्दी आ जाएं लोग, हेपेटाइटिस C वाले भी, B वाले भी, और आपके सिरोसिस वाले भी, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। बिल्कुल कंप्लायंस हम नहीं करते, हम अक्सर लोग इंटरफेरॉन शुरू कराते हैं, दवाइयां शुरू कराते हैं, एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन के बाद उनको वो छोड़ देते हैं, वो जरूर करना चाहिए। रिहेबिलिटेशन का मतलब है जब आप बीमार हो गए उसके बाद जब ठीक हो गए हैं, कोई आपकी हालात बेहतर हो गए हैं, तो आपने दोबारा वो बिहेवियर नहीं करना हो। इट इज a rehab behavior what people need to do after an illness to recover। और आखिरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कम्युनिटी वालों को सबको काम करना है, वीफैट को भी करना है, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड केयर एंड कंप्लायंस टू मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड, दैट इज द हॉलमार्क। इसके बगैर हेपेटाइटिस के जितने मर्जी आप नारे मार लें, जो मर्जी कह लें, फिर लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको बिल्कुल। समझ ही नहीं है। तो ये वो चीजें हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा जो है ना इसके अंदर वो करेंगी। सो ये मैं प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा, आई डिडंट गो थ्रू द लास्ट स्लाइड, इसमें वो ब्लड सेफ्टी और सेफ सेक्स इंजेक्शन प्रैक्टिसेस की बात हुई हुई है, बट आई थिंक द बॉटम लाइन इज वी नीड टू वर्क एज अ कम्युनिटी, हेल्थ बिहेवियर ठीक करने, यूटिलाइजेशन ठीक करनी है, इलनेस, कंप्लायंस, रिहेबिलिटेशन एंड सिस्टम रेगुलेशन, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांट कि आप सब जो है ना वो उसके ऊपर फोकस करें। And that is all from my side, I think, and I'll share this presentation and open for question answer anything if there are। जी मैमा and जी Hubab। सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक जो आपने बड़ी अच्छी हमें जो बातें बताई उसमें ये था कि सबसे पहले तो ये कि 3 केस हमारे जो पब्लिक को समझने की ज़रूरत है वो यही है कि 3 केस अगर एक कम्युनिटी से आ रहे हैं, एक एरिया से आ रहे हैं, तो अलर्ट दैट इज सिस्टम, अलार्मिंग, अलर्ट फॉर द अलर्ट, हेल्थ सिस्टम एज बिल्कुल। वेल। और अगर हाँ 6 आ जाते हैं तो डेफिनेटली हम उसको कह आउटब्रेक है, देंगे कि ये आउटब्रेक हो गई है, एपिडेमिक आ एपिडेमिक है, गया हुआ है। एपिडेमिक है। बिल्कुल। और सर 9.5% आपने बताया कि प्रिवेलेंस है पंजाब में, हेपेटाइटिस बी की, और है पंजाब में 6.5% है हेपेटाइटिस सी की पंजाब के अंदर। नहीं, सर बी कम है, बी की कम है, बी सी की सर इज अराउंड 6.5। 9%, हाँ जी सी इज बी 9 बी पॉइंट सिक्स पॉइंट समथिंग फाइव एंड परसेंट बी, हाँ जी, एंड जी सी। बिल्कुल। सर आपसे एक क्वेश्चन जो मैं ही आपसे करना चाहूंगी सर, आपने अपनी स्लाइड में बताया कि जो बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनमें मोस्टली जीपीज हैं, नर्सेज हैं, LHVs हैं, फ्लेबोटमिस्ट हैं। सर बेसिकली आप कह रहे हैं वहीं से सबसे ज्यादा जो है ना वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं बाय रीयूजिंग द सिरिंजेस। सर क्या हम ऐसी हेल्थ पॉलिसी ला सकते हैं कोई उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कि जिससे हम इस ये जो एक विशेष सर्कल चला हुआ है इसको हम ब्रेक कर सकें? सर आपकी नजर में कोई ऐसा सोल्यूशन जो आप बताना चाहे पब्लिक को, या फिर पब्लिक को इस मामले में अवेयरनेस देना चाहें कि आपने जब जाना है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जी वो सिरिंज आपके सामने खुले, या कोई इस तरह की चीज जो आप सजेशन देना चाहें या दो कोई तीन आप। चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जो ऑलरेडी लॉ का हिस्सा हैं, ठीक है। जी एक है तकरीबन हर सूबे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स मौजूद हैं। तो बिल्कुल। किसी भी एक्ट से अगर किसी कंज्यूमर को डैमेज होता है तो वो उसको सू कर सकता है, उस लोगों को पता नहीं है इस बात का। तो उनको पता नहीं। दूसरे नंबर पे आ गया है हेल्थ केयर जो हमारा कमीशन है, ठीक है ना। जी तो देयर इज अ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, देयर इज अ KP हेल्थ केयर कमीशन, देयर इज अ सिंध हेल्थ केयर कमीशन, बलूचिस्तान हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और अभी वो उसको कमीशन में बना रहे हैं। हेल्थ जी केयर कमीशन को अगर आप ये रिपोर्ट कर दें कि मुझे रीयूज सिरिंज लगी थी, और वो जाके छापा मार के पकड़ लेते हैं रीयूज सिरिंजेस का, उनको कुछ एविडेंस मिल जाता है, वो उसी टाइम सील कर सकते हैं उसको। तो इसलिए कोई नवा कानून बनाने की हमें जरूरत नहीं है। आप में जी से कोई रिकमेंड ना करे नया कानून, हमें जो कानून मौजूद हैं अगर मैं वही इंप्लीमेंट करवा दूं तो पाकिस्तान के 80% मसले हल हो जाते हैं। वी डोंट नीड एनी न्यू लेजिस्लेशन। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है राइट्स का, और जो देने वाला है जो हमारा है ना प्रोवाइडर, वो जी बिल्कुल मादर पितर आजाद है। उसने इस तरह से समझा हुआ है जैसे ये मेरे मेरे मुरीद हैं सारे, जैसे हम पीरों फकीरों के साथ करते हैं जाके जो वो करें हमारे साथ हम बर्दाश्त कर लेते हैं, वैसे ही डॉक्टर भी एक तरह से हमारे पीर ही होते हैं। वो जो GP होता है ना, वो मेरे कई जानने वाले हैं, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब तुसी बेशक जो भी है सही कहते हो, पर मैं अपने फलाने डॉक्टर को जैसा मैं उस ही चेक करा सा, वो आखसी ते फिर मैं टेस्ट करा सा।
वो कहता है टेस्ट नहीं करवाना। उसकी वजह ये है, उसको पता है कि इसको होगा मसला जो ये है, और ये एक दफा चला गया मेरे से तो ये प्रोफेसर उमर का केस बन जाएगा, फिर मेरे पास किधर आएगा, ये उमर के पास गया तो फिर तो वापस नहीं मेरे पास आएगा। तो जीपी फील थ्रेटन्ड एंड दे डोंट रेफर द केस, बट हेल्थ केयर कमीशन हैज अ सिस्टम। दूसरा एक चीज और ध्यान में रखें, हम अभी यजान को भी पता है और खुबैब को भी, हमने अभी एक फैमिली मेडिसिन का प्रोसेस शुरू किया है एंड वी साइंड अ मेमोरेंडम एंड एन एग्रीमेंट विद WHO। पूरे पाकिस्तान में हमने जीपीज का एक पूरा फैमिली मेडिसिन का डिप्लोमा शुरू किया है, जिसमें 9 यूनिवर्सिटियां इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग किंग एडवर्ड जो हमारी है, और इसके अलावा बहुत सारी RMU भी उसमें है, और मेरी अपनी हेल्थ सर्विसेज एकेडमी भी उसमें मौजूद है। हमने सर्टिफिकेट करवा दिया, अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डिप्लोमा। इट विल बी लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू एन MS, तो हम उसकी एक MS की MPhil की डिग्री देंगे इसके अंदर। और फ्यूचर में इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए, जीपी बनने के लिए या इंश्योरेंस प्रोग्राम में अटैच होने के लिए, जस्ट लाइक NHS UK, यू हैव टू हैव अ डिप्लोमा होल्डर ऑफ दिस फैमिली मेडिसिन। TMC उसको अप्रूव करेगी, HEC उसको मानेगी, तो हमारी सबसे बात हो गई हुई है। सो वो जो एक सिस्टम है ना, वो रिफॉर्म इतना जबरदस्त है कि उसके अंदर फिर हम चांसेस रखता है कि हम चांसेस हैं कि हम इससे जान छुड़ा लेंगे। सो ये जो एक हेल्थ केयर कमीशन है, दूसरा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लॉज हैं, अभी इस वक्त भी DHO ऑथराइज्ड है। DHO को जरा सा एविडेंस मिले कि किसी ने ये हरकत की है, DHO कैन सील इमीडिएटली, ड्रग इंस्पेक्टर भी कर सकता है ये तो। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, कोई और क्वेश्चन आप में से, ऑडियंस में से कोई करना चाहेगा प्लीज? ऑडियंस में से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and ask your question. Assalamualaikum. Thank you so very much for the wonderful presentation. I would just like to add one thing. सर ये चीज़ तो हमने बिल्कुल नेशनल हेल्थ विजन में भी जो 2025 है उसमें भी पढ़ी है, जो आपने बताई है रिगार्डिंग द GP, उनकी ट्रेनिंग और उनको एक तरीके से इस तरह ट्रेन करना ताकि ये जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। बिल्कुल ये है, लेकिन हमारा जो, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है खुबैब। सर आ रही है आपकी आवाज? अच्छा ठीक है, नहीं मैंने कहा हमारे है ये हिस्सा, लेकिन आप एक बात याद रखो, ये जब तक आपका सिस्टम के ऊपर गवर्नेंस या सिस्टम के ऊपर स्टीवर्डशिप और चेक एंड बैलेंस ना होना, यू द पीपल आर बाउंड टू मेक प्रॉफिट्स। उनको लगता है यार हर पेशेंट से अगर मैं पुरानी सिरिंज यूज करूंगा तो 10 रुपए में बचाऊंगा, और जिसने रोजाना के 50, 60 या 100 रुपए में हर पेशेंट को मैनेज करना हो ना, उसके लिए 10 रुपए बड़ी चीज होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। आप सारी बातें छोड़ें, मैंने अभी आज का अपना पूरा, मेरा जो मैं सुबह से सोच रहा था, बड़ी बातें थी, बड़े बड़े फ्रेमवर्क बने हुए हैं। हम यहाँ पे जब MSPH कराते हैं, ये अजान को भी पता है, बाकियों को भी, उनको हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B एज ए टॉपिक देते हैं, 2 महीने 1 महीने वो उस पर काम करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, मेरे ख्याल में अगर अपना हिसाब कर लेना हेल्थ सिस्टम का, बाकियों को छोड़ें, यहाँ पर अवेयरनेस और पता नहीं ये डाटा और ये, आप सिर्फ हेल्थ को ठीक कर लें, आधी हेपेटाइटिस C के केस उधर ही खत्म हो जाएंगे। कहाँ से आएंगे हेपेटाइटिस C के केस? आपको ब्लड से आ रहे हैं ना, ये कोई STD नहीं है। लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बहुत कम पाकिस्तान में STD के जरिए फैलता है। ये इंजेक्शन ड्रग यूजर से लग रहा है आपको, वो जो जाके जाके अपना खून भी बेचते हैं और वो इंजेक्शन सिरिंज एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, फिर वो जाके जब कमर्शियल सेक्स वर्कर के पास जाते हैं ना, तो फिर वो उसको लगाते हैं और फिर वहां से बहुत सारे लोगों को लगता है। दैट इज द ओनली रूट। आया कहाँ से? आया तो सिरिंज से है, और सिरिंज से फिर गया सेक्स वर्कर के पास थ्रू IDU जो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा, हम कहते हैं ना, निप द ईवल इन द बड वाली बात है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की कंप्लायंस बेहतर कर लें, हेल्थ सेक्टर को काबू कर लें, सही कर लें, तो पाकिस्तान के आधे केस वैसे ही खत्म हो जाने, और फिर बाकी भी हम मैनेज कर लेंगे। बाकी क्या है, ये डेंटल प्रैक्टिस इससे होता है ना, वो भी हेल्थ प्रोवाइडर है। देखें इंजेक्शन के बाद दूसरा क्या है, डेंटल प्रोसीजर्स। तीसरा क्या है, इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट। तो नीडल स्टिक इंजरी है, उधर से रीयूज ऑफ सिरिंजेस है, इधर से इक्विपमेंट है, मेडिकल के ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, रहता ही कुछ नहीं है। अगर हम हेल्थ सिस्टम ठीक कर लें तो पीछे सिर्फ सेक्स वर्कर्स रह जाएंगे। वो पाकिस्तान में इतना उसकी परसेंटेज नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस B एंड C। B में भी थोड़ा सा होगा, C का भी, HIV ज्यादा है, बट अगेन HIV का भी नंबर 1 कॉज पाकिस्तान में IDUs है और रीयूज ऑफ सिरिंज है, ये भी याद रखें। सो और देखें स्टिग्मा कितना खतरनाक है। अगर किसी को ये पता लगता है कि, और जो वो खातून GP के पास गई, उसने, और ये लड़काना में हुआ है,
वो गई है वहां पे, उसने टीका लगवाया है, टीके से उसको HIV हुई है, उसको बदकारी के इल्जाम में उन्होंने सजाए मौत दे दी है और फांसी उसको लटका दी है, और दरख्त पे लटकी हुई लाश हमने देखी है सिंध में। ये आप इमेजेस निकाल के देखें, स्टिग्मा कितना बड़ा होता है। देखें यहाँ पे अगर किसी को हेपेटाइटिस C होता है ना, या हेपेटाइटिस B होता है, या HIV होता है, 100% उसके ऊपर टैबू यही होता है कि यार ये बदकारी की वजह से, रॉन्ग सेक्स प्रैक्टिसेस की वजह से इसको हुआ है। पीपल स्टिल डोंट नो दैट द नंबर वन कॉज इज द हेल्थ सेक्टर, इट इज अस, it is the provider who is spreading this disease. It's not the commercial sex worker, it is another worker who is doing this. So that is, ये हाईलाइट कर रहे हैं हर जगह पे, आप ये इसके ऊपर बात करें। और इसको बहुत, जिस तरह आप क्रैक डाउन करते हो ना कमर्शियल सेक्स वर्कर के अगेंस्ट, इसी तरह क्रैक डाउन करो इन जीपीज के अगेंस्ट जो एक्चुअली ये काम कर रहे हैं। जरा सा आपको पता लगे कि ये काम करता है तो आप उसके ऊपर क्रैक डाउन करो, उसको पकड़ो। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक देयर इज नो अदर रीजन, देयर इज नो अदर जस्टिफिकेशन एंड रीजन to do these kind of things। ठीक है ना, हमारे लिए सबसे आसान यही है जी। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे भी आपने बताया कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखा कि कोई मेल प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने इससे कहा कि ऐसा ना करें, डेफिनेटली वो इतने अरसे से कर रहा है, वो मेरी बात क्यों सुनेगा। तो मैं चूंकि फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, आप मुझे आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि फर्दर मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे आपने कहा कि आप नोटिफाई करें पंजाब हेल्थ केयर कमेटी। उससे तो बहस ही नहीं करनी ना, उसको तो आप रिक्वेस्ट करेंगी सिंपल कि डॉक्टर साहब इस तरह मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, हम वायलेंस कह रहा हूँ फॉर वॉलंटियर फोर्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस है ट्रांसमिशन, तो हम जो है वो इस पे काम करते हैं, आपकी मेहरबानी है, हमने नोट किया है कि आप कभी कभी जो है ना, ये ना कहें कि हमेशा तुम करते हो, कभी कभी आप जो है ना रीयूज करते हैं। कि एक दफा भी अगर आपने रीयूज की तो चांस है कि हेपेटाइटिस, और 10% लोगों को हेपेटाइटिस का मतलब क्या है आप खुद सोचें। If 10% Pakistanis have hepatitis C, say in Punjab 9.5%, 9.6%, so there is a chance, there is a huge chance that the other person, और वो जो भी हेपेटाइटिस जिसको होगा वो डेफिनेटली बार बार जा रहा होगा जीपी के पास, तो ज्यादातर जीपी के पास जाने वालों की शरह कौन सी होगी? वही होगी जिसको हेपेटाइटिस C होगा। तो आपने उसको नहीं कहना, आपने वापस आके हेल्थ केयर कमीशन का हर जगह हॉटलाइन नंबर होता है, हर जिले में हेल्थ केयर कमीशन का ऑफिस होता है, आपने एनोनिमस उसको कॉल करनी है और उसको कहना है कि मेरा नाम नहीं बताना, आप जाके चेक कर लें फलाना बंदा ये कर रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने DHO के ऑफिस में जो भी बंदा हेपेटाइटिस का कोऑर्डिनेटर है डिस्ट्रिक्ट का इन्फेक्शियस डिजीज का एक कोऑर्डिनेटर होता है, उसको बता दें कि सर ये है। ड्रग इंस्पेक्टर को बता दें। तीसरा हो गया। चौथा है, बहुत हुआ तो आप जो है वो अपने जो वीफैट की कम्युनिटी है इसको बताएं, जो आप रावलियन जो इन्होंने बनाई है मेहमान ने, इनको बताएं, दे विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स। इट इज नॉट दैट यू शुड स्टार्ट फाइटिंग विद द जीपी, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग। हम आपको एक बात बताऊं, हमने एक दफा एक ट्रेस की, सिंध में एक गांव में एक गोठ में एक हमारी न्यू बॉर्न के अंदर केसेस आ गए HIV के। हम हैरान के यार, न्यू बॉर्न में तो मैटरनल से आनी चाहिए थी, ये तो फादर से या मदर से बच्चे में आई होगी। सो हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन है चेक किया तो उसकी मदर को नहीं, सारे हैरान। और 2-3 बच्चे इस तरह के निकल आए। वी वेंट टू दैट गोट, और उसमें जाके जब उन्होंने एनालिसिस किया तो वो जो खतने करने वाला, सरकमसिजन करने वाला नाई था एक, उसने उस तरह रखा हुआ था, पता नहीं अपना जद्दी पुश्ती किसी जमाने का, उसने हेयर कट की होगी किसी बंदे की जिसको HIV होगा, टक लगाया होगा, ब्लड उसमें कहीं स्टोर हो गया, उसके बाद जिस बच्चे की उसने सरकमसिजन की उसको HIV कर दिया उसने। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ, हमने जब ये वहां पे जाके कहा तो मेरे साथ जो दूसरे साहब थे उन्होंने कहा अगर हमने यहाँ पे ये ऐलान कर दिया ना कि इस बंदे ने किया, इन सारे गोट वालों ने पकड़ के हमें मारना है। क्यों? कि ये इनके खाने भी पकाता है, शादी ब्याह पे भी यही होता है, और ये बड़ा रिस्पेक्टेड बुजुर्ग है कोई। तो उन्होंने बकायदा, हमने वो ढूंढा जाके और उस तरह, और वो निकला, और उसके जो हैंडल था और वो पुराना सा उसने लेदर के उसमें डाला हुआ था उसकी दुकान पे नाई की, और उस पर ठीक ठाक किस्म के ब्लड के क्लॉट का ब्लैक कलर के हो चुके थे सारे। और वो इट वाज अ कॉलोनी ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस C एंड एवरीथिंग। हमने उसे कहा कि सर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू उस तरह हम आपको गिफ्ट में देते हैं, आज के बाद ये वाला आप उस तरह इस्तेमाल करना, ये हमें दे दें। वो हम लेके आए वापस, हमने उसका एनालिसिस किया एंड देयर वर ऑल टाइप ऑफ HIV ओवर देयर। और आप उस वक्त अगर वहां पे आप गोट में ये ऐलान कर देते कि इसकी वजह से हुए हैं बच्चे, या तो कुछ बच्चों के माँ बाप ने इसको मार देना था, या हमें उन्होंने मारना था कि तुम इल्जाम लगा रहे हो। Because something similar happened in another area where the team was attacked by the people, कि तुम कैसे कह सकते हो यार इसकी वजह से हुआ है। सो ये बड़ा अच्छा सवाल था इनका। इन्होंने जो कहा कि मैं नहीं लड़ सकती, नहीं, आपने तो लड़ना ही नहीं है, आपने तो रिपोर्ट करना है, ठीक है।
और इमीडिएटली उसको रिक्वेस्ट करनी है, नहीं मानता है तो ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट करना है आपने, और रिपोर्ट करके जमीला आपने ढूंढने हैं। ये हम सबको पता होना चाहिए, डीएचओ का हॉटलाइन नंबर क्या है, या ऑफिस का नंबर क्या है, कोऑर्डिनेटर का इन्फेक्शियस डिजीज के नंबर क्या है, हेल्थ केयर कमीशन कौन है हमारे, पिंडी में कौन है, लाहौर में कौन है, चकवाल में कौन है, मतलब डिवीजन का कोई होगा ना एक। तो देर आर एंड दे आर एक्सेसिबल एंड दे हैव सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल, यू नो, यू कैन ऑलवेज सेंड एन इनबॉक्स कर दें उनको, मैसेंजर में डाल दें, आप ये चीजें आप कर सकते हैं। सो इट इज लाइक दैट जी। नेक्स्ट उम्मा जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? सर इसमें बस एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज regarding when we talk about the dentist, my wife is a dentist. When she came to Islamabad, she searched, she went to a lot of clinics for the job, और वहाँ पर उसने मुझे बताया, बिकॉज मेरा तो इस तरह एक्सपोजर नहीं है, बट शी टोल्ड मी जिस तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में हो रही है, जिस तरह बनी हो गया और इस तरह के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, मतलब ऑटोक्लेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मशीनरीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पेशेंट अगर आ रहा है उसके टेस्ट नहीं हो रहे, अगर कोई उसका प्रोसीजर हो रहा है और वही जो है ना इक्विपमेंट जो है वो दूसरे पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल की जा रही है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि इवन जो हमारा प्राइवेट है इसको भी हमें लाना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, बट विद प्रॉपर रेगुलेशन और गवर्नेंस और स्टूवर्डशिप जो आपने बताया, ताकि इन पर भी एक प्रॉपर कंट्रोल हो और केसेस यहाँ पर कंट्रोल हो सके। नहीं, ये जो मैंने बात की है ना, हेल्थ केयर कमीशन की, डीएचओ की, ड्रग इंस्पेक्टर की और इन बाकी चीजों की, इनका कोई लेना देना नहीं है पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। क्वैक्स को भी वो पकड़ सकते हैं, वो प्राइवेट को पकड़ सकते हैं। और डेंटल मैंने बताया नंबर 1 इंजेक्शन है, नंबर 2 डेंटल है, ठीक है ना। एंड देन देर आर इक्विपमेंट्स जो आप यूज करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर्स करते हैं जिनसे, तो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये ठीक कर लिया तो मेरा ख्याल है 50-60% आपकी हेपेटाइटिस की ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, एचआईवी की भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आई एम अजहर हुसैन फ्रॉम अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, फाइनल ईयर एमबीबीएस। सर, मेरा जो हेपेटाइटिस में जो है कोई शदीद किस्म का इंटरेस्ट है और आई हैव मल्टीपल पब्लिकेशन ओवर देयर। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इन्होंने 1500 मिलियन रुपीस से पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया है। Why they are not following the pattern of Egyptian hepatitis control program? Like in 2008, WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट था हाईएस्ट प्रेवलेंट था फॉर हेपेटाइटिस सी। उनमें जो एंटी-HCV RNA एंटीबॉडीज थी उनकी पॉपुलेशन में वो 15% थी, मीनिंग कि भाई उनका हर 100 में से 15 बंदे जो थे वो इससे इन्फेक्टेड थे। तो they were having a lot of visa issues and plus a lot of healthcare burden, क्योंकि उनके हर 9वां 10वां बंदा जो है वो सिरोसिस अपनी एडल्ट एज में 30, 40, 50 इयर्स में वो डेवलप कर रहा था। तो उन्होंने जो है इंतहाई एक्सटेंसिव प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें उन्होंने मास अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किए। दे यूज्ड ऑल द सोशल मीडिया आउटलेट्स के, जिनमें रेडियो का यूज़ किया, उन्होंने अपने नेशनल टेलीविजन का यूज़ किया, उन्होंने इवन के बिलबोर्ड्स और जो भी पॉसिबल वे आउट हो सकता था पॉपुलेशन को एजुकेट करने का, उन्होंने इसको यूटिलाइज किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो है मास स्क्रीनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया। 60 मिलियन पॉपुलेशन थी 2016 में इजिप्ट की, टोटल जो पॉपुलेशन थी, जो एडल्ट पॉपुलेशन थी अबाउ 18 ईयर्स। उन्होंने अबाउ 18 ईयर्स से जो उनकी पॉपुलेशन थी, उन्होंने 15 मिलियन को 2016 से 2020 के दरमियान उन्होंने स्क्रीन किया। और उन्होंने ये कैसे पॉसिबल बनाया? ऑफ कोर्स बाय डेडिकेटेड स्क्रीनिंग सेंटर्स, जैसा कि हमारे पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर हेपेटाइटिस क्लिनिक बना दिए गए हैं, हर इवन के इसके THQ के लेवल तक भी बना देगी। लेकिन हमारे पास मोबाइल स्क्रीनिंग कैंप्स क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे पास जो हेपेटाइटिस क्लिनिक में जो पेशेंट जाता है, या तो वो इंतहाई ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और वेल एजुकेटेड होता है कि उसको लगता है यार मुझे हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, या फिर वो जाता है जिसको सिम्टम डेवलप हो चुकी होती हैं और उसका जो है इनिशियल स्क्रीनिंग जो है वो GPs के अंदर, इमरजेंसी क्लिनिक में या
कहीं और उसकी पॉजिटिव आ चुकी होती है तो उसको हेपेटाइटिस क्लिनिक में रेफर किया जाता है ताकि उसका पीसीआर और आगे सारा कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसका तय किया जाए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाई वी आर नॉट हैविंग अ मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम। दूसरा, व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जब हमारे पास इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आउटलेट है, नेशनल टेलीविजन है और हर ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में एफएम रेडियोज हैं और समथिंग लाइक। दूसरा, तीसरा ये है कि इजिप्शियन का जो टोटल बजट है एज ऑफ 2021 जो उनका रिसेंटली अप्रूव जो उनके पार्लियामेंट ने बजट अप्रूव किया वो है 145 बिलियन यूएस डॉलर्स, और जो पाकिस्तान का 2021 का बजट है वो है 45 बिलियन यूएस डॉलर्स। ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान से 2/3 ज्यादा है, ये मानने वाली बात है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमें 1500 जो मुझे 2019-2020 के फिगर्स याद हैं प्रोफेसर यासिन नबी तैयब के मुताबिक, वो जो है 1500 मिलियन रुपीस जो है पाकिस्तान को पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एलोकेट किया है। तो क्या ये फंड्स इतने काफ़ी नहीं हैं कि हम मैस स्क्रीनिंग में इनको चैनल कर सकें, फनल कर सकें? क्योंकि मैस स्क्रीनिंग के बगैर जो पेशेंट साइलेंट कैरियर है वो तो तभी जाके डायग्नोस होगा जब वो सिम्टम डेवलप करेगा। और ऑफ कोर्स जो साइलेंट कैरियर्स हैं दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन। एक माँ जो है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है, 18+ ईयर्स की है, उसको अगर हेपेटाइटिस बी है तो अगर वो अनट्रीटेड है, हाई वायरल लोड है, तो डेफिनेटली उसने जितने बच्चे भी पैदा करने हैं दे ऑल विल बी इफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। तो व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग इट? आपने मेरा ख्याल है शुरू में हमने जो डिस्कशन की वो मिस कर दी। मैं यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक इशू है, वो फाइनेंशियल है। हम इजिप्ट का किसी तौर मुकाबला नहीं कर सकते। अरब है, पेट्रोल है, टूरिज्म है, और जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ निकाल लें आप उनकी, आपको बेहतर पता होगा कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, उनका पूरा जो कल्चर है और उनका जो रीज़न थे, डिटर्मिनेंट्स थे, वो हमसे फ़र्क है। हमारा सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर खुद है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पहले अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हेल्थ सेक्टर में लो हैंगिंग फ्रूट है ना ये, दिस डजंट कॉस्ट एनीथिंग। if your healthcare commission, if your DHO, if your consumer protection team, magistrate और ये सारे, they can just go and see the compliance of the existing laws. I'm not saying to make any other law, just compliance करने से अगर मैं कहूँ कि जी 60% या 70% भी कंप्लायंस करवा लेंगे तो इतना ही % खत्म हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस सी, बी और HIV। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग है वो अब तमाम जो फ्यूचर इंटरवेंशन है हमारी हेपेटाइटिस की उसका हिस्सा है। आप जो कह रहे हो ना 1500 मिलियन, 15 अरब का जो पंजाब का प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बड़ा जो खर्चा है वो कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग है। एक सुजुकी की कैरी डब्बा वैन है, उसमें किटें हैं, उसमें टेस्ट का मौजूद है, उसमें टेक्नीशियन है और मोबाइल टीम है ये लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ और BHUs के साथ कोरिलेट करके दे विल बी डूइंग, और इसमें मिलियंस के करीब लोगों को ये होना है, टेस्ट होना है। लेकिन बात ये ना कि ये मल्टी सेक्टोरल और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए होती है, वो उसमें कम्युनिटी अवेयरनेस भी आएगी, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। बाकी आपने ठीक कहा, ये जो चीज़ें हैं ये चाहिए हैं, लेकिन अगर आपको कोविड आ गया और कोविड में $1 अरब की आपने वैक्सीन खरीदनी है और पता नहीं कितने $1 अरब के आपने PPE और बाकी चीज़ें की हैं, आपकी OPDs बंद हुई हैं और बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं, तो ये हमें थोड़ा सा पीछे ले जाता है ना। बाकी आई एग्री कि वी नीड पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, बहुत हाई लेवल की हमें स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड है। हमें बहुत सारी जो कहते हैं ना अवेयरनेस भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी लोगों को काले अरकान का पता है, एवरीबॉडी नोज कि क्या है ये। पहले नहीं पता था लेकिन अभी पता है। ये नहीं पता कि ये इंजेक्शन से भी फैल सकता है, ये अभी इस पे काम जारी है। लोग इसको सेक्स के साथ रिलेट करते हैं HIV की तरह। HIV भी इस वक्त नंबर 1 कॉज उसका जो है वो सिरिंजेस हैं, उसको भी हम सेक्स के साथ रिलेट करते हैं और टैबू बनाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ ये पॉइंट होता है हमेशा जब मैं बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमें सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में,
उसके बाद अगला ये वाला काम करना चाहिए जिसमें थोड़े पैसे लगते हैं, फिर उसे अगला काम वो करना चाहिए जिसमें ज्यादा पैसे लगते हैं। अभी अगर आप मुझे बताएं कि एक अमाउंट ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस हम देते हैं पब्लिक सेक्टर को भी, और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे पैसे खर्च करता है, अगर वो ठीक नहीं खर्च कर रहा तो उसको मजीद पैसे देके पैसे जाया करवाने की जरूरत तो नहीं है ना। हमें अपने आप को, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, सिस्टम को बेहतर करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। जी मेहमान नेक्स्ट, मुझे आसिफ भी नजर आया है कहीं पे झांकता हुआ। जी सर। सर बेसिकली छुपा हुआ है, तुमने समझा नहीं, वो करना नहीं चाह रहा था आज। ये देखें ना, ये किसी और कमरे में छुपा है। वंडरफुल टॉक सर, लव टू हियर यू। स्टूडेंट जो ना वो आपको सुनना पसंद करते हैं सर। अच्छा चल यार, क्वेश्चन है कोई तो फटाफट ले लो। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन? आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। सर वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर योर प्रेजेंस। आपने इतना कीमती वक्त से अपना हमें इतना सारा वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई, और आई थिंक कि स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन हैं उनके लिए बहुत मुफीद मालूमात हैं ये सारी। और स्पेशली जो आपने बार बार एम्फेसाइज किया कि हमें अपना हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, कि जो इंजेक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जाके हाउस ऑफिसर्स बनना है, पीजी ट्रेनीज बनना है, और अल्लाह खैर करे ये एक इनमें से कुछ जीपीज भी बनेंगे। सो एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस हेल्थ सिस्टम, हम सबको मिल के ये काम करना है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, अपने लोगों को भी, हमारे साथ जो हमारे कलीग्स हैं उनको भी, और जो पब्लिक है उनको भी, कि हमने अपने सेफ प्रैक्टिस कैसे करनी है। जो एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, ही हैज़ ऑल द राइट टू से कि काइंडली जब आप जो है वो मुझे इंजेक्शन अगर आपने लगाना है फॉर इफ एट ऑल कॉस्ट, तो काइंडली मुझे एक नई सिरिंज आप दे दें, बेशक आप उससे मुझसे पैसे एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन वो मुझे आप ज़रूर एक सेफ जो है वो सिरिंज प्रोवाइड करें। ये चीज़ें हम लोगों को, हमने लोगों को बतानी है, और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि वो किस तरह अपने हकूक़ पे बात कर सकते हैं। और अगर हम में से कोई देखता है इस तरह की जो है अनएथिकल प्रैक्टिस, तो जैसे कि सर ने कहा कि आप डीएचओ को इन्फॉर्म करें, डीएचओ इन्फेक्शियस डिजीज़ को, आप हेल्थ केयर कमीशन है, अब तो बहुत सारा निज़ाम ठीक होता जा रहा है, तो अब हम इन सब लेवल्स पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्लीज़ आप जो है इस अनएथिकल प्रैक्टिस को बंद करवाएं, और ये जो है वो एक गलत काम हो रहा है, इसको आप काइंडली इस पे चेक एंड बैलेंस रखें। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपको भी भेज दी है, मतलब उसको अपने आसिफ को और याजान को भी भेज दी है, एंड आई थिंक मरियम को भी मैं भेज देता हूँ, मरियम शाह। ठीक है, चलें, मरियम को भी चली गई है। सो इफ एनीवन वांट्स इट यू कैन शेयर इट, ऑल्दो मैंने बातें बोल दी हैं सारी, इट वाज नथिंग न्यू बट स्टिल। ठीक है जी, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई रिसीव्ड योर प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सो मच सर। हाफिज़। लव यू सर। बहुत अच्छी और मुफीद मालूमात हमें मिली प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान से। अब जो है वो आई वुड लाइक टू इनवाइट our very own Vice Chancellor Professor Dr. Mohammad Umar Sitara Imtiaz, and he has all the speciality in hepatitis, और मेरा ख्याल है कि हेपेटाइटिस पे बात करना हो और प्रोफेसर उमर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आई वुड रियली वांट कि सर हमें ज्वाइन करें और हमें बताएं कि हेपेटाइटिस के लिए मज़ीद अब क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिहाज से हम और क्या कुछ कर सकते हैं, और कितने केसेस इस वक्त करंटली जो है वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, और क्या मज़ीद हो सकता है उसके लिए। सर thank you very much Dr. Maima for invitation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is indeed pleasure to listen Dr. Shahzad. I think किसी ने कहा कि उनको सब सुनना चाहते हैं, तो I really agree कि Dr. Shahzad से जो talk होती है, it is a treat for many health professionals, even like me. यहाँ तक आपने कहा कि it is a war, and particularly eradication of hepatitis जो है, जब तक उसको war footed पे नहीं दिया जाएगा on all sectors, which I mean the government levels, healthcare professional levels, community leaders, तो ये obvious बात है, ये एक joint एक strategy है जिससे आप इसको eradicate कर सकते हैं। और rightly said कि शायद जितने resources
WHO ने इजिप्ट में पंप इन किए हैं, दैट इज अनदर रीजन कि वहाँ ये इसकी सक्सेस हुई है। नॉट ओनली दैट गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव था, बट WHO ने भी उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। आई थिंक जहाँ तक आपने कहा कि आई थिंक सबसे बड़ी बात ट्रीटमेंट के मायमा बजाय जो है इट इज़ द प्रिवेंशन, एंड प्रिवेंशन कम बाय अवेयरनेस। तो एक प्रोएक्टिव जो अवेयरनेस है वो बड़ा ज़रूरी है कि अदरवाइज तो आप रेडिकेट करेंगे और फिर कहीं पॉकेट रेज हुआ तो फिर वो स्प्रेड करना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक the mainstay is awareness, or awareness does not cost much as compared to the treatment and curative strategy. एक तो मैं उसी को endorse करूंगा कि spreading awareness and prevention. I think this is a key, and this is not key which for the hepatitis C, but all other communicable diseases or infectious diseases से आप दूसरी जो communicable disease उनसे भी बच सकते हैं। So this is one approach, and secondly, obviously we need a political will, we need a national plan. Rightly किसी ने कहा कि हमने इसको लॉन्च किया था 2016 में और अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम उसको सक्सीड नहीं हुए कि उसको ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट किया जाए। और पंजाब में तो उसने बड़ा अच्छा काम किया था। बट माई सजेशन इज कि इसकी प्लानिंग जो है वो ऑब्वियस बात है होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, और रीइंस्टेट करना चाहिए जो पंजाब हेपेटाइटिस प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम था। Last but not least, what is our duty as healthcare professionals? So I think हमारी ड्यूटी वही है कि हम इसकी अवेयरनेस को कॉमन करें और वो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो पब्लिक सेक्टर को चाहिए पब्लिक में हो, और जैसे राइटली सेड बाय शहजाद साहब कि हम वी आर द मेन स्टेक होल्डर्स जो इसको स्प्रेड करते हैं। वो डेंटिस्ट हो, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर्स हो, मैं माई सेल्फ हो के जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, सर्जन्स हैं, डिलीवरीज होती हैं, ये बहुत बड़ा चंक है जो स्प्रेड करता है। तो अगर ये भी जिसे कहते हैं ना कि इंटरनेशनल या जनरल इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स जो कि गाइडलाइन में मौजूद हैं वो लिए जाएं, तो इससे भी एक सब्सटेंशियल फर्क पड़ेगा विद द वेरी लीस्ट कॉस्ट। So once again, I'm thankful for arranging this seminar. I was here throughout in this webinar, and I think it was very useful. I congratulate Maima, you and Asif and rest of the stakeholder जो दूसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें हैं। Thank you once again for asking my comments. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. कोई any questions? कोई question करना चाहेगा? Is Professor Umar here? Yes, I'm here. Sir, first of all, I'm a big fan of you. I have been following since 2 years और आज आपसे डायरेक्ट बात करने का मौका मिला। सर, thank you very much. हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम आप कोर्स हमारा जो है, अगर हम विदाउट बायस और नेशनल प्राइड और इसको लेके साइड पे रख के चलें तो पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनसे बहुत बेहतर काम कर रहा है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि अभी मैं खुद गंबट लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर में एज ए रिसर्च ऑफिसर अपॉइंट हूँ, तो वहाँ के सारी चीज़ें मेरे सामने हैं। दूसरी बात ये है कि सर एक एफएम पे गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर और एक कॉमन हेपेटाइटिस अवेयरनेस के लिए 2 मिनट या 3 मिनट की कोई एक क्लिप, ऑडियो क्लिप, और टेलीविजन के लिए 2-3 मिनट का वीडियो क्लिप बनाने पे मेरे ख्याल में 10,000 रुपीज़ भी खर्च नहीं होंगे, जो कि एक मंथ की 100+ डेक्स की जो हम करंट रजीम दे रहे हैं फॉर हेपेटाइटिस सी, वो एक मंथ के पैसे भी नहीं बनते सर। तो व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मैथ कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस एंड कैंपेन एंड अलॉन्ग दैट लाइन। पहला तो ये सर। दूसरा ये कि आपको पता है सर ने बड़ी अच्छी बात की कि शाह साहब ने कि सारे बंदे जो हैं जानते हैं जरकान क्या है। सर मैंने इतने बंदे देखे हैं, बेसिकली मैं देहात से हूँ तो मैं ओपनली ये बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो डायग्नोस्ड केस हैं जिनको इंसिडेंटली को खून देने के लिए गया या कुछ इस तरह, तो उनका इंसिडेंटली निकला है कि वो हेपेटाइटिस बी या सी के लिए कैरियर है। तो उनको जब मैंने कहा कि जनाब आप इसका इलाज करवा लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरे फैमिली के लिए, तो वो कहते हैं अभी हमें कोई अलामात नहीं है तो हम कुछ नहीं करना चाहते, असा लिहाड़ी नहीं तोड़ना चाहते।
असा निहार क्यों जाया करूं, ये उनका सर रिस्पॉन्स होता है कि वाई वी शुड वेस्ट अ डे. तो वी शुड फोकस आवर एनर्जीज in mass education plus mass screening. What do you say, sir? Sir, thank you very much for your kind words. So I strongly agree कि जैसे मैंने कहा कि the start of the अगर आपने हेपेटाइटिस को eradicate करना है तो political will जो है वो obvious बात है, इतने massive scale पे किसी चीज को eradicate करने में बहुत जरूरी है. I strongly agree. I think ये क्वेश्चन तो ज्यादा बनता था शहजाद साहब के, जो फेडरल मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं और माशाल्लाह एनसीओसी के साथ बैठे होते हैं और बड़े बड़े स्टेक होल्डर के साथ. तो आई थिंक ये नेशनल प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में और एक आम शहरी को हमने क्या रिलीफ पहले देना, और इसकी डिजीज के जो आउटकम है फ्राइटनिंग है कि लिवर कैंसर अगर आप गैम्बिट में है तो द ऑल पेशेंट हु आर लिवर ट्रांसप्लांट दिस इज बिकॉज ऑफ द हेपेटाइटिस सी एंड बी. तो हेपेटाइटिस बी सी का जब लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो आपने तो 10,000 की बात की, वो 60-70 लाख पे खर्चा जाता है. ये तो गैम्बट वाले वारी काइंड के वो सारा इसको सपोर्ट करते हैं. तो जितना खर्चा एक लिवर ट्रांसप्लांट पे होता है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि प्रिवेंशन पे और अवेयरनेस पे शायद उसका 100 भी ना होता. सो आई स्ट्रांगली एग्री कि ये एक मेजर फॉल्ट है हमारे पॉलिसी मेकर्स में और प्रायोरिटीज में हेल्थ जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका, और ऑब्वियसली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में. तो मैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ. और इसी तरह किसी ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की थी कि बेशुमार जो चैनल्स हैं वो प्राइवेट चैनल्स हैं. सो उनको भी शायद सेंसिटाइज करने की जरूरत है, उनको लूप में लेने की जरूरत है कि बिल्कुल ये 30 सेकंड का या 1 मिनट का मैसेज जो है इट डज मैटर. आजकल के दौर में द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अवेयरनेस इज दिस इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है और सोशल चैनल्स. आई एग्री विद. So thank you so much. Thank you so much. सर अजहर साहब को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रावलीन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारा रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही एक सोसाइटी है, हम उससे अवेयरनेस काफ़ी सारी इस रिगार्ड में, जैसे इन्होंने कहा कि क्लिप्स बना के आप अवेयरनेस करें, तो ये एक अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह की अवेयरनेस जो है वो आपको नज़र आएगी, जिसको हेड कर रही है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी. Ma'am, it's good to know, ma'am. Thank you so much. Any other questions? अजहर साहब ने कहा वो सर के बहुत बड़े फ़ैन है. मेरा ख्याल है हम में से शायद ही कोई होगा जो सर का फ़ैन नहीं होगा, क्योंकि जिस डेडिकेशन से और जिस मेहनत से सर काम करते हैं, हमने बेसिकली वो काम करना सीखा ही सर से है. सर, वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू. Can I ask the question? Sure. We have some time. This is Dr. Aftab Ahmed. I'm actually based in NUS. I really appreciate the initiative by RCAP. Your people are doing really wonderful work. Thank you. Dr. Mahima and Dr. Asif. And this discussion was also very enlightening. So it's very important that we should educate the community about hepatitis in Pakistan and the measures they have discussed. I just have a question to Dr. Umar. We had a meeting actually a month ago. And I have worked on some of the technology which are the recent one, like related to tissue engineering. My postdoc was on tissue engineering, so I was mainly working on the liver regeneration. So we were actually working, idea like behind my work back in 2015 was to grow the liver in the laboratory. Like in this case, we have to get the liver from another donor, and there is not enough donors. So in that case, what we do, we prepare a natural scaffold, and then we get the cells from the patient and we grow those cells in that liver in that natural scaffold. And this is how we can grow a piece of liver in the laboratory. So as I think RMU is doing wonderful work, I also had a discussion with Dr. Umar about this. So what, Dr. Umar, do you think, like this is a recent research and it's been done successfully, like a lot of work is going on, lab on a chip and the artificial, like the natural organs being developed in different laboratories. Like in the United States, they have developed the bladder and they have developed the skin, we have developed our cell as well. So do you think that we can also take, like, this is a big problem in our country. I think if we can focus on research and your university can like support these kind of initiatives, so we can do a lot. So what do you think about this?
Sir, sorry, I think Sir Umar has left. शायद कोई connection issue आया है. Sir इस वक्त हमारे साथ नहीं है. Okay. Because I think some of the glitch of the net, that's why he got disconnected. Because he didn't leave it intentionally. कोई glitch आया है net का, इस वजह से जो है ना, I think वो offline हो गए मैं. But definitely I'll pass your question on to VC Saab as soon as I will meet him. Okay, thank you. Thank you so much, sir, and sorry for the inconvenience. No problem. We can Thank you. understand like these kind of problems are common, so it's Yeah. Thank you so much. जी, खुबैब, आप कुछ कहना चाहेंगे? I think it was a very healthy discussion. It was a very healthy discussion by Dr. Shehzad, and very proper questions taken up as well, asked as well and taken up as well. Or added to it, Professor Umar also he really appreciated what Dr. Shehzad said, and he second to that. उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने हमारी इस वेबिनार सीरीज़ को अटेंड किया. और मेरा ख्याल है कि जिस तरह प्रोफेसर उमर ने आखिर में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो है सबसे इफ़ेक्टिव है और सबसे सस्ता टूल है. तो मेरी यही क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे कि हम खुद जो हैं अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं, हमारे घरों में हमारे नेबर्स हैं जो काम करते हैं, तो उन लोगों को हम एजुकेट करें. हम सब लोग पर्सनली उनको बताएं इन बीमारियों के बारे में और उनके साथ क्लिप्स शेयर करें व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए. तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये एफ़र्ट जो है ज़ाया नहीं जाएगी. और बेशक हम अपने इर्द गिर्द 7-8 लोगों को भी अगर अवेयर कर देते हैं इस बीमारी के बारे में, इसकी प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स जो इस टाइम हमारे लोग हमारे साथ ज्वाइन है इस टाइम इस जूम कॉल में, और जो लोग हमें देख रहे हैं, तो हम अपना काम जो है वो पूरा कर सकते हैं. बाद में इंशाल्लाह जब हम फिजिशियंस बनते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स बनते हैं, तो वो तो बात की बात है. लेकिन अभी एज मेडिकल स्टूडेंट्स जो हम वीफैट में हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो वो हम इस एफर्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन इस तरह से डाल सकते हैं. बिल्कुल. और डेफिनेटली वेरी वाइजली सेड बाय समबडी दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो जब आप इतने जो है वो मुश्किल प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे, इतनी महंगी दवाइयाँ और उसके लिए जो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसके बाद जो कोई इन्वेसिव प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें. और उसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो आपकी अवेयरनेस है. आपने मैक्सिमम अपने लोगों को अवेयर करना है, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, ऐसी बातें ऐसी आपके पास स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए कि जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकें. सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें. आप एज डॉक्टर, एज बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं. सो अपने विसिनिटी में देखें. आप सब लोग जितने लोग हमें अटेंड कर रहे हैं और जितने लोग हमें सुन रहे हैं फेसबुक पे भी, बाकी जगहों पे भी, सो प्लीज़ अपने विसिनिटी में एज बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्लीज़ ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस. के एक जो सिरिंज है, अगर आप वो इस्तेमाल आपकी हो जाती है, रीयूज़ हो रही है, अगर आपके ऊपर रीयूज़ हो रही है या अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं, तो काइंडली इस मैल प्रैक्टिस को आप ख़त्म करने की कोशिश करें. डिमांड करें कि जब आप हॉस्पिटल जाएं या फिर आप अपने किसी जीपी के पास जाएं या किसी भी ऐसे बंदे के पास आप जा रहे हैं, जैसे कि सर शहजाद ने कहा कि जी दूर इलाकों में गोट वगैरह में जो नाई वगैरह जो खतने कर रहे हैं उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काइंडली उनको आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत के साथ एजुकेट करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें आपकी अपनी नस्लों को तबाह करेंगी, आपके अपने लिए नुकसानदेह है, आपकी सरमाया, आपकी सेहत, हर चीज़ दाव पे लग जाएगी. सो ये बातें वो हैं जो आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से, कन्विंसिंगली आप लोगों को समझा सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं. उसके अलावा स्क्रीनिंग कैंप्स लगाने की ज़रूरत है. फिर जो इनिशिएटिव्स मेडिकल कॉलेजेस में लेने की ज़रूरत है वो ये है कि जिस तरह वीफैट काम कर रही है, इसी तरह अवेयरनेस कैंपेन्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी करें, जो कि इंशाल्लाह RCAP बहुत जल्द इस चीज़ को लॉन्च करने वाली है कि हम डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से भी हम सोसाइटीज़ इस सोसाइटी को स्प्रेड करेंगे, एम्बेसडर्स बनाएंगे जो कि आगे फर्दर अपना अवेयरनेस करेंगे.
मीडिया, जैसे कि प्रोफेसर उमर ने कहा कि मीडिया इज द मेन थिंग, लोग देख के बात समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ओपीडीज़ के अंदर आपकी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, तो आप उसके ऊपर ये पैगाम बार बार चलाएं, बार बार शेयर करें, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई होती है वो देख के समझ शायद ज़्यादा जाए बनस्बत जो हम बात करें शायद उनको इतनी समझ ना आए। ओपीडीज़ के अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी एज बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड यू बीइंग एज स्टूडेंट्स, हम वी शुड बी इन हैंड कि इस चीज़ को हमने ओपीडीज़ के अंदर जाके जो है वो एड्रेस करना है। सिर्फ कह देने से मामला ठीक नहीं हो जाता कि यहाँ बैठ के हम जितनी मर्जी वेबिनार सीरीज कर दें, हम जो मर्जी बात कर लें। उसका बेस्ट तरीका ही ये है कि हम जाके उसको ओपीडीज़ के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। एंड आई होप कि वी फार्ट और आर कैप और फर्दर जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, हम वी विल जॉइन दिस नोबल कॉज इंशाल्लाह वेरी सून, एंड वी विल स्टार्ट लॉन्चिंग these awareness campaigns in the OPDs and in the wards as well. Thank you, Web. Thank you for inviting me, and thank you for this whole series of webinar, for conducting this whole series. I'm really very Yes, thankful. ma'am, आपका भी बहुत शुक्रिया. Thank you so much. And I'm very much thankful to the audience as well. You've been great audience. बहुत अच्छे questions किए और बड़े mind boggling questions थे, ताकि जो है वो लोगों में awareness हो सके उनके उन questions के answers की वजह से। बहुत शुक्रिया। सिर्फ आखिर में एक कॉलिन पाउल्स का एक कोट ऐड करना चाहूँगी, जो मैं तकरीबन हर जगह ऐड करती हूँ, कि a dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. So we have to work with determination, with all our hard work, and we will have to give our sweat to this cause. Thank you so much. Thank you so much, everyone, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.